Done. Yeah, it has started. Yeah, thank you so much. We can start with the session. Thank you. No worries, no worries. Okay. हम cameras on करें, please. Yeah, sure. Thank you. Okay. I'm waiting for more people to switch on cameras जब भी possible हो. Wait. Thank you so much. Okay. So we'll start with the session in introduction से. ठीक है, हम इंट्रोड्यूस करेंगे एंड आज थोड़ा सा ट्विस्ट है इंट्रोडक्शन में. आई वुड लाइक टू आज तो शेयर कि हम जब ये स्पेस में आ रहे हैं, ओके, जब ये मीटिंग ज्वाइन करें, हम क्या ला रहे हो वो स्पेस में. ठीक है, इट कुड बी फन, इट कुड बी एक्सपीरियंस. ओके, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ शेयर कर सकते हैं स्पेस में सबके साथ. ओके, Yeah, sure. थैंक यू. ओके, सो माय नेम इज सकीना और मैं ये स्पेस में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ला रही हूँ. सो आई वुड invite people to share their names and what they can bring to the space. So, Shubham, this side, and I don't know what I am getting. Okay. I didn't get it what you said right now. Okay. What I'm saying is, let's introduce ourselves and share what we can bring in the space. Okay. It could be fun. It could be craziness. It could be humor. It could be experience. Okay. So anything from our side that we can bring in the space. Okay, got it. Okay. So Understood. I'm starting with myself. My name is Sakina. I'm facilitator for today's workshop, and I'm bringing safety in the space. Okay. Nice. My name is Shubham Vishwakarma, and I am bringing peace. Okay. Thank you, Shubham. Yeah. Who would like to go next? Okay, I can go next. Hi, my name is Aman Patel, and I am bringing happiness and joy in this session. Thank you, Aman. Hello, everyone. I'm Naveen. I would like to bring a gratitude to this space. Thank you, Naveen. Who would like to go next? My name is Abhinav, and since today is Saturday, I can bring a lot of good German beer. Thank you. Towards the end of the session, at least we can try and do virtual cheers. Thank you. I would like to go next. Hi everyone, my name is Pallavi and I would like to bring a lot of care in the space. Thank you, Pallavi. Srinivas, would you like to introduce yourself? Yes, ma'am. I'm Srinivas. I'm from Andhra Pradesh. I would like to bring to experience in this session. Experience. Thank you, Srinivas. Okay, ma'am. My name is Lakshman Kumar. I am from Rajasthan. I would like to bring new ideas and thoughts
Thank you, Lakshman. नमस्कार मैम और सभी मेंबरों को मेरे वरों नमस्कार मैम। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे भी और सभी मेंबरों से भी, तो प्लीज हिंदी में बात करें। थैंक जी, यू। ओके ओके मानसी। um, um, मैं जब वर्कशॉप में इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ एंड हम जो एक्टिविटीज करेंगे आई ट्राई कि मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँ। मैं थोड़ा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों यूज करूंगी। आई वुड रिक्वेस्ट वन वॉलंटियर फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स जो हिंदी में थोड़ा सा टाइप करके समझा सके अगर किसी को डाउट है तो चलेगा। Sorry to interrupt. Actually, few participants are there who don't know Hindi. So that's why we just have to speak in this language. Right. So I understand that there are multiple bilingual participants. So मैं हिंदी में भी बात करूंगी, मैं इंग्लिश में भी बात करूंगी. In case if we miss out something कुछ छूट जाता है, so I would like volunteers जो हिंदी में थोड़ा सा explain कर सके, because even I'll try most of the time I might just switch to English. Right? So if someone can just volunteer and type those instructions in Hindi can be really helpful. Yeah, sure. I'll do that. Yeah. Okay. Thank you so much. मंजी, हम अभी के लिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम हमारा नाम बता रहे हैं एंड वी ऑल्सो शेयर कि हम ये स्पेस में क्या लेके आ रहे हैं. सो पीपल आर गेटिंग एक्सपीरियंस, care, safety, right? So if you can also share what you आपको आप स्पेस में क्या ला सकते हैं, क्या शेयर कर सकते हैं सबके साथ. हाँ जी मैडम, मैं तो आर्मी का एक्सपीरियंस ही आपके साथ एक्सप्लेन कर बता सकता हूँ मैडम. Okay. Thank you so much. I hope everyone's introduction is done. I think Hitesh is remaining. Hitesh and Naveen. I'll go ahead. Yes. Good evening, I'm Hitesh Brahma. I'll bring in gratitude in the space. Thank you, Hitesh. Naveen? I'm done. I I'm am remaining. Sakina. Yes, Gayatri. Yes. So, hi everyone. My name is Gayatri. I'll bring compassion and self-love in this session. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. So हम सबका इंट्रोडक्शन हो गया, right? ठीक है. Thank you so much. Next. I think one speaker is still left, and his name is Lakshman. His name is Lakshman. Okay, thank you. Lakshman did introduce himself. I have done. Okay, all right. I'm sorry. I have done. Okay. Thank you. I like how we are looking out for each other. जो next वाली activity होगी वहाँ पे will require this attention. Who has spoken and who has not. ठीक है. अभी के लिए थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं. ठीक है. Since Saturday है, since it's the end of our week, we have done really hard work towards the end of the week. हम सब ने बहुत अच्छे से काम किया है पूरा हफ्ता. ठीक है. So अभी के लिए we'll start a song. Okay. Now I know English भी है, हिंदी भी है, कुछ लोग मराठी and आसामीज वाले भी है. Correct? So I'll start a song. Okay. जैसे भी whenever you feel that you can join in. Okay. Please feel free to unmute yourself. आप खुद को unmute करके song sing करना start कर सकते हो. चलेगा? Yeah, sure. Okay.
It's okay if you're unmuting yourself from now only. It's fine. It's okay. Okay. Let's have some chaos. Okay. So I am starting with a song. My song starts with I can sing a song. I can sing a song loudly. I can sing. I can sing fast. I can sing slow. Anyone? So Sakina, do we have to add on another line, or do we have to continue with the same line? Please add on to your lines. Okay. However you want to sing. Okay. Fine. I'll go next. Yeah. And I'll sing in some another language, maybe. Yes. मी गाते पण माझा आवाज खूप चांगला नाहीये. मी गाते आहे पण माझा आवाज खूप चांगला नाहीये. खूप चांगला नाहीये. Okay. Would someone like to join in? If there's some other song we can sing, it's okay. Okay, maybe I can add in Hindi so that more people can have, join us, and they'll have some examples also. Okay. मैं गाना गा रही हूँ. मैं गा Okay, the song is not coming out. मैं गाना तेज गा रही हूँ. मैं गाना स्लो गा रही हूँ. मैं गाना जोर से गा रही हूँ. Okay. Anyone else? Words can be different. मैं गाना हिंदी में गा रही हूँ. हाँ, right. I am singing in English. I am singing loudly. I am singing slow. I am singing deep. Okay. Let the flow keep going. Would any other participants, कोई और participants को join करना है? Maybe I can go ahead, but I will sing in German, okay? Yeah, so that we will have a flavors of languages. Ich singe ein Lied. Ich singe ein Lied. Ich singe ein Lied. Okay. Thank you. Now my turn. मैं प्यार भरा गाना गा रहा हूँ. मैं बहुत ही मधुर आवाज में गाना गाऊंगी. मैं इतना अच्छा गाना गाऊंगा कि सभी ऑडियंस के सारे मुस्कुराने लग जाएंगे. थैंक यू. Thank you. Okay, great.
Would anyone like to go next? Okay. Yeah. Claps for everyone. Okay. जो नेक्स्ट राउंड है, जो आज का टॉपिक है हमारा, द टॉपिक इज ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन. ओके. सिंगिंग एक ऐसा मीडियम है, सिंगिंग इज अ मीडियम वेयर इट बिकम्स easier to express. Okay. And it's also very easy to understand what the other person is trying to express. है ना? जो दिल की बात होती है वो बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरत तरीके से बाहर निकलती है ना? कभी कभी होता है, there are times we find it little challenging, a little difficult खुद को एक्सप्रेस करने में. कभी कभी वैसे चैलेंजेस आ जाते हैं कि पता है क्या बोलना है, पर कैसे बोलना है वहां पे इशू आ सकता है. राइट. I would invite everyone to unmute themselves and share कि क्या challenges है. Okay, what are these challenges that we face while sharing or expressing our thoughts, our emotions? क्या challenges हम face करते हैं खुद के thoughts and emotions share करने में? Yeah, first of all, I would like to tell about something. So whenever I shared some thoughts or some story and some anecdote to someone else or to somebody, so what happened to me is, so I am not fluent, and I just like stuck some words or few words, and I won't be able to deliver the words which I want to say that to someone else. So that is the reason behind. Like if the story or some story is short, so I would like to tell, but the story is so long, and so I am unable to deliver in a good way. Okay. Okay. What is the challenge that you face when you are saying a story, right? When you're expressing your thoughts, fluency is one thing. What are the other challenges where you feel that if this was not there, okay, and even if I take time, it would be okay? Oh, okay. So I don't know. Whenever I say to someone else, so my breathing pattern is abnormal. Getting abnormal, and the words comes out which is totally unusual. So that is the reason behind. Right. Okay. 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 Thank you for sharing, Shubha. यहाँ पे I'll try and address everyone's thoughts and challenges towards the end. Okay. I would like you to pick another participant and invite them to share their challenge. Yeah. Maybe apart from stammering, maybe one of the fears can be fear of being judged, or you can be into vulnerable position, and if you want to share, I mean, then you may think that others may not understand it. Yeah, so that can be one of the challenge apart from standing. Right. Right. Thank you for sharing. How when we feel that judgment, experience that judgment, how that makes us feel?
Of course, it will make us feel bad or sad. Yeah. Okay. Thank you for sharing. To keep the chain on, Abhinav, I would request you to invite another participant to share. Okay. नवीन और नवीन अगर हो या फिर लक्ष्मण. Yes, the major challenge that I faced during communication is sometimes like we go on the fight mode rather than me being myself. So for a period of time, for a short period of time, like we cannot sense the things. So after that, then we become a normal. So that is one thing, and also the engaging the audience is the thing that I think I'm not. I should improve upon. Yeah. Okay, okay. Thank you for sharing. While we are sharing, I would like us to, share where we share the challenge. Okay, situation क्या है, challenge क्या है, and how that makes us feel. What is the situation? Okay, what is the challenge and how that makes us feel? Okay, but for example, I feel anxious when I am addressing a large number of people. Okay, तो आई सी के हम शुभम अभिनव नवीन ने जब शेयर किया, वी डिड शेयर कि क्या फील होता है. ओके, if it's in this pattern, it will help us continue in the session. Okay, right. Naveen, would you like to invite someone from the participants to share? Yeah, I would like to invite Aman Patel. Okay, great. So I think the most important most important aspect which comes into play is in which environment we are going to speak. So yeah, so the environment plays a very important role, and as we have identified ourselves as being a stammerer, and who also, I mean, of course, we haven't had a great experience of speaking as well. So uh, so this identity of of stammerer, uh, that we won't be able to speak, it makes us anxious. So, and in that anxiety mode, it increases a lot, and of course, feeling of embarrassment and all those comes into play. Okay. Thank you, Aman, for sharing. Who you would like to invite next? Okay, so I would like to invite Srinivas. Hello. Mm, Challenges I face while I expressing my thoughts are the facial facial expressions of the listener, and the eye contact of the listener. As a stammerer, when we see the abnormal face facial expressions of the listener, we are in a
we are in a situation that whether my words are mm, understandable to the listener or not. This is the challenge. Okay. Thank you. Thank you for Yes, sharing. yes, ma'am. Who you would like to invite next? Harun, ma'am. Okay. Harun. Thank you. ओके, थैंक यू। मैंने अभी अभी मीटिंग को ज्वाइन किया है, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा गाइड कर दें कि मुझे अगर आपने इनवाइट कर दिया है तो मुझे क्या बोलना होगा। Okay. Okay. So, Harun, आज का जो हमारा सेशन का टॉपिक है, it's on effective communication, right? So, before we move there, you're understanding what is the challenge in while communicating or expressing our thoughts. So, we are sharing our situation, okay? वहाँ पे situation क्या है और how is that making us feel? यस, थैंक यू। आपने मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि जब हम लोगों के सामने बात करने लगते हैं या उनसे कम्युनिकेट करने लगते हैं तो हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें वो कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना होगा कि वो मौका क्या है, किस बारे में हम बात करने लगे हैं, हम क्या कंटेंट हो सकता है जो हमें उस मौके पर प्रोड्यूस करना है। तो अगर हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तो हमारे माइंड की और टंग की आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगी। तो हमें उस मौके को, उस क्वेश्चन को पहले मेंटली अंडरस्टैंड करना होगा कि हम क्या क्या बात इस मौके पर कह सकेंगे, और फिर कोशिश ये करनी है कि पॉजेज लेकर और स्लोली स्लोली हम उस पर्सन से भी और उस एनवायरनमेंट से भी थोड़ा सा अपने आप को मानूस कर पाएं। तो फिर हम थोड़ा सा अपनी पेस को बढ़ाकर और अपनी हैंड मूवमेंट को, अपने गेस्चर और पोस्चर्स को इजीली मूव करके अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you. Thank you for sharing, Harun. Who would you like to invite next to share? अच्छा, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि कौन से पर्सन ऐसे रह गए हैं जो अभी बात कर पाएंगे या जिन्होंने भी बात नहीं की। We have Harun, sorry, Lakshman, Hitesh, Naveen, and Manjeet. ओके, मैं हितेश जी को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आए और हमें थोड़ा सा बताएं कि जब हम लोगों से कम्युनिकेट करने लगते हैं तो हमें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। थैंक यू। Thank you, Harunji. Based on past experience, judgment by other people, if somebody you're talking to somebody new or different, that is one part of judgment. One part of some internal mental blocks can happen in a person, that he is not thinking through. He has to first, while you're speaking, he has to first think through, plan and do it. But overall, I would say that we lack to know the, maybe you can call it ways or techniques, or you can call it so ways or techniques to speak effectively with individuals, strangers,
and even in addressing say 20-50 people in a gathering. So some techniques or some ways are there that we can learn, practice, and improve ourselves so that we can improve and speak better. Right. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Hitesh. While you are, addressing to the new crowd, or when you are, sharing your thoughts, while you are sharing, the techniques are there, right? However, in that situation, how that makes you feel, when it's your turn, or when you are approached to share your thoughts. If you are well prepared, like we discussed in our number of groups, if you are well prepared and if you are planned and if you know your subject matter very well, then you're able to express in a phone pe 2 minute please. If you are sorry, if you are prepared for the meeting, if you know the subject matter very well, and if you are knowing the subjects and details very well, then it is good. But in case you are not well prepared, or you feel you'll be judged, or you feel you will be interrupted, or you'll be laughed at, then you get a little complex on that. Thank you. Thank you for sharing. Who you would like to invite next? Who is left? This is what I said in the beginning of the session. You need to remember. We have Lakshman remaining. Lakshman, please go ahead. Lakshman, go ahead, please. Thank you. It is this. I wait last few months. When I was speaking, I faced many problems, like forget words, what I can say, or I also forget the hand movement, like eye contact, like expression, like smile. So this I generally forget, and also I hesitation in some words which started like ka, k, ka, and also like t. These words I facing more problems as compared to others. Thank you. Thank you. Thank you, Lakshman. Thank you for sharing. Who you would like to invite next? Who is there though? Remain. We have Naseeb new join, Manjeet, Dheeraj, and Akash. I would like to invite Dheeraj ji. Dheeraj ji Prajapati. Dheeraj ji, are you there? Dheeraj ji. I think he is not there. So next one is Manjeet ji. Manjeet ji, are you here? Okay. हाँ जी मैडम। जी। हाँ जी मैडम, मेरा स्पीकर ऑन नहीं हो रहा था। हाँ जी मैडम, मेरा ये मतलब मानना है कि जैसे हम सभी लोग अच्छे नहीं लगते। अगर हम सोचें कि हमको वो लोग मतलब पूरे अच्छे लगते हैं,
इसी प्रकार जो और लोग हैं उनको भी जो सभी लोगों अच्छे नहीं लगते। और हमको मैडम दिल से ये बात निकाल देनी चाहिए कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर अगर हम ऐसे बोलेंगे तो। उनको जो सोचना है उनको सोचने दें, लेकिन हमने जैसा बोलना है हमने वैसा ही बोलना है। और मैडम जब हम किसी पर्सन से बात करने जाते हैं तो सबसे पहले तो हमारे दिल में डर यही होता है कि मैं यहाँ पर हकला ना जाऊं। और उसके बाद हम जब वहां पर जाते हैं तो सही बात हुजूर हम हकला ही जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले हमको दिल से ये डर निकालना चाहिए कि वो क्या हमारे बारे में सोचता है, हमने ऐसा ही मतलब अपना बोलना है। हम जब किसी बंदे से बात करने जाते हैं सबसे पहले हमको डीप ब्रीथिंग करके अपनी बात शुरू करनी चाहिए और एक अच्छी सी स्माइल देकर उसे बात करनी चाहिए और आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए। और इससे मतलब कि बहुत फर्क पड़ता है। हमको जो ब्लॉक्स आती हैं वो नहीं आएंगी। और 4-5 शब्द बोलने के बाद हमको पॉज लेना चाहिए। और मान लो जब वो अगला बंदा बात कर रहा है तो हमको अपनी ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हमको जब हम बोलते हैं तो हमको जल्दी नहीं करना चाहिए, जल्दी अपनी बात को खत्म नहीं करना चाहिए, हमको धीरे धीरे ही बोलना चाहिए। और हम ये मत सोचें अरे यार वो बंदा तो बहुत तेज बोल रहा है, वो आदमी बहुत अच्छा बोल रहा है। और हमको अपनी जो बात आगे रखनी है किसी के आगे, हम बिल्कुल धीरे धीरे ही बोलना चाहिए। और यही मैडम मेरा मानना है। थैंक यू मंजीत। मंजीत, आप नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को इनवाइट करना चाहेंगे उन, उनका चैलेंज शेयर करने के लिए? मैडम मुझको उनके नाम नहीं ना पता है। Okay. I think we have Naveen remaining. Naveen? I'm done. Okay. Well, okay. I think everyone's done. In case we are missing out anyone, please feel free to join in. Gayatri Pallavi, अगर if आपको भी कुछ share करना हो, challenges if you face. Before that, I think Naseeb is there. Okay, anyways, I'll go. Okay. तो मुझे एक्चुअली सोशल सेटिंग में बहुत डर लगता है। तो मैं कभी भी ज्यादा भीड़ वाले एरिया में नहीं जाती हूँ, या फिर किसी भी ऐसे इवेंट को मैं अवॉइड करती हूँ जहाँ बहुत भीड़ होती है या जहाँ मुझे बहुत लोगों से बात करनी होती है, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत डर लगता है किसी से बात करने में जिनको मैं जानती नहीं हूँ। ये सोच के कि पता नहीं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, या मैं फर्स्ट टाइम जब उनको अप्रोच करूंगी तो तो पता नहीं मैंने जो बोला होगा वो उनको कैसे कन्वे होगा और मेरा क्या इम्प्रेशन बनेगा उन पे। तो तो हाँ, मुझे बेसिकली किसी भी सोशल इवेंट में जाने में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे नए लोग होते हैं और मैं बहुत सारे नए लोगों के बीच में थोड़ी सी एंग्शियस हो जाती हूँ, तो और थोड़ी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। सो आई थिंक या तो मुझे उस सिचुएशन में थोड़ा कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उस टाइम मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा सोच रही होती हूँ कि कैसे बोलना है कैसे बोलना है, एंड तब उतना मतलब सोचने की वजह से ज्यादा और गड़बड़ हो जाती है फिर। तो या Thank you for sharing. Gayatri, would you like to share something?
Yes. For me, many times it happens, like most of the time, if I don't like something about a person, या फिर कोई मेरा कोई क्लोज है या फिर इवन अ क्लासमेट या कोई भी, मैं किसी को जानती हूँ और अगर मुझे किसी की कोई चीज पसंद नहीं है, तो मुझे वो कम्युनिकेट करना नहीं आता है. आई विल सफर बट आई विल नॉट कम्युनिकेट टू दैट पर्सन कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है तुम्हारा. आई विल जस्ट बी ओके, ठीक है, फाइन. सो ये एक चीज है जहाँ पे आई फेस प्रॉब्लम in communication, where it comes to communication, where I cannot tell the other person, even in if it's my family member, I cannot tell कि this is something that I'm not liking or this is something जिससे मुझे तकलीफ हो रही है, सो ये मत करो या फिर ऐसे मत बोलो, तो मैं नहीं बोल पाती हूँ. Okay. Okay. Yes. Thank you for sharing. Yeah. Okay. जब हम communicate कर रहे हैं तो when we are addressing the large crowd, okay, what is it from the outside? Like how Srinivas shared that it's, the people's expression, people's having that eye contact, okay. Manjeet shared ki we are prepared if I am using certain techniques to speak fluently, I'm practicing, okay. What do we feel ki bahar wale ko agar if there is anything outside, if that we can help and change or prepare them before we start talking, would be helpful for us to communicate, for us to share. Sorry, could you repeat again what you said right now? Yes. So while everyone shared, right, what are the challenges? Okay, one challenge which we observed was, how other people respond to us, like what other people will think, how other people will judge. Okay, what are certain things we feel if we can help them prepare the crowd, if we can help them prepare, okay, it will help us to then share our idea in however way we feel it's comfortable for us. Yes, Harun. जी, पहले तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करें, या जिस तरह की ऑडियंस है उनका मेंटल लेवल, उनका एजुकेशनल लेवल, हम उसके मुताबिक हम बात करके देखें. हमारी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए कि 5 साल के बच्चे के लिए भी वही बात है तो 60 साल के बूढ़े के लिए भी वही बात है. तो जिस तरह की ऑडियंस होगी, हमारी जो बातें हैं, हमारी जो कम्युनिकेशन है, वो वैसी ही होनी चाहिए. और कोशिश ये हमारी करनी चाहिए कि बात बहुत आसान वर्ड्स में कही जाए, पॉजेस लेकर बात कही जाए. और ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उस बात को बार बार रिपीट करने की कोशिश करें मुख्तलिफ तरीकों से, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग पहली बार में उस बात को नहीं समझ पाते. तो स्पीच का एक वे ये भी होता है कि आप मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी मेन बात को बार बार लोगों की तरफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर एक दफा में उन तक बात नहीं पहुंची तो दूसरी तीसरी दफा में वो बात समझ जाए, और उस मेन बात से मिलती जुलती या रेलिवेंट एग्जाम्पल्स हम उनके सामने रख पाए, ताकि अगर वो बात को समझने में मुश्किल हो भी पा रही है तो उस एग्जाम्पल को लेकर वो बात समझ पाए. और ये भी जरा कोशिश करें कि उस बात में थोड़ा सा विट अगर आ जाए, कोई जोक अगर आ जाए, तो वो भी लोगों को काफी पसंद होता है. तो मेरे ख्याल में इस तरह इन तरीकों से हम अपनी बात को
लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। थैंक यू। Okay. Thank you for sharing. Is Yeah. there any other way? हाँ जी, हाँ, अमन। आई थिंक जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि ऑडियंस में मतलब क्या चेंजेस हो जाए जो हमारी इच्छा है, राइट? मतलब कि हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाए। तो आपका जो क्वेश्चन है उसके स्पेसिफिक आंसर मुझे लगता है कि जो लोग हैं उनको ऑड न लगे। अगर हम स्टैमर करते भी हैं तो उनको ऑड न लगे कि अरे मतलब उनको उनको इजी फील हो। तो आई थिंक इफ दीज एक्सप्रेशंस वी सी इन द ऑडियंस वी गेट कॉन्फिडेंस एंड उससे हमारे अंदर एक मतलब एक इफेक्ट होता है और हमारी इम्प्रूवमेंट भी स्पीकिंग में होता है। तो ऑडियंस का एक्सप्रेशन आई थिंक प्लेज वेरी इम्पोर्टेंट रोल। हम चाहते हैं कि वो सारे लोग अवेयर हो जाएं इसके लिए और वो हमें कोई हीन भावना से कि यार ये बोल नहीं मतलब वो हमें ऐसा ना सोचें कि बेचारा बोल नहीं पा रहा है। आई थिंक इट इज़ वी वांट चेंज इन ऑडियंस। Right, right. So continuing on this, okay, we want that change. We want them to, we can help them prepare while we communicate. हमें उनको तैयार करना है कि हम क्या आगे आने वाला है, right? अगर वो prepared होंगे, उनको पता होगा, then automatically कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि okay, how to create that supportive environment, right? So when anytime we are feeling anxious, okay, or in a or nervous, right, anytime in any situation where we feel कि यहाँ पे मुझे express करना है, यहाँ पे मुझे share करना है, okay, we need to also understand the other person's perspective. जैसे हारून जी ने बोला कि हमें वो भाषा आनी चाहिए, language is one part of it, कि हमें अगर वो भाषा आती है, okay, अगर मुझे पता है सामने वाला हिंदी में समझता है, इंग्लिश में समझता है, वो एक है, okay. However, we also need to help the person bring to the mental and emotional level, okay. अगर हम emotionally भी अगर वो level पे आते हैं, when we are on the same page, okay, it becomes easier to understand and express. And like how Aman said, कि it becomes easier to express when we feel understood and when we feel heard. Okay, so while we are on effective communication, okay, this is what we can try and do. Okay, there is something called as I language. Okay, I language में जो I है, it's not this. I language का I है me, me myself, मैं. Okay, what happens is when we try and communicate in I language, जब मैं I language use कर रही हूँ जहाँ पे मेरा फोकस मेरे पे है, ओके, क्या होता है कि सामने वाले को समझने में इजी हो जाता है, ओके, कि उनको क्या करना है, ओके. सो यूजुअली लेट मी ट्राई एंड गिव यू एग्जांपल, ओके. ऐसा है कि मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, ओके, एंड मेरी फ्रेंड लेट आई, ओके. I might just scream, मैं उस पर चिल्लाना स्टार्ट करूंगी, तूने मुझे मैसेज नहीं किया, too late आई, you did not inform me, right? What happens is the minute we hear the word you, okay, सामने वाले का भी डिफेंस आ जाता है, okay, and they start attacking us, okay. वहां पे फिर वो इमोशनल लेवल पे हम साथ में नहीं है, okay. Instead of you, if we try and translate the entire sentence into I, okay, I felt disrespected that I was not informed, okay. I feel hurt, okay, when I did not receive any text message from you, okay. क्या होता है कि सामने वाले को समझ में आता है कि अगर मैं गुस्सा हूँ, okay, किस बात के लिए मुझे गुस्सा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे धूप में खड़े रहना पड़ा, okay. Similarly, when I'm bringing this from the previous workshop where Rohil shared his experience with interviews, है ना, कि इंटरव्यूज में वो कभी कभी घबराहट हो जाती है, ठीक है. हमारी जो स्पीच थेरेपी में जो हम लोग टेक्निक्स सीख रहे हैं, वी आर
sharing, okay, but एक certain point तक आता है, okay. How about we try and set a boundary, okay, in a way कि हमने यहाँ पे बता दिया कि this is what's going to happen, okay, and this is what I expect from you, okay. Let's take the example of, you know, when I'm addressing the crowd and I feel nervous, okay, and then I start people, you know, looking at me, okay. How about if वहां पे अगर मैं आई लैंग्वेज से एक्सप्रेस करूँ कि आई विल फील सपोर्टेड व्हेन पीपल आर, यू नो, पार्टिसिपेटिंग विद मी, ओके. क्या होता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे सिर्फ स्पॉटलाइट मेरे पे नहीं है ना, दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके. The other one challenge that I have commonly faced is कभी कभी लोग सेंटेंस पूरा कर लेते हैं before I even complete, okay, my entire sentence, and they complete it, becomes very annoying, है ना. तो शायद उनको पता नहीं है क्या करना है, okay. अगर मैं बोलूँ तुमने मेरा सेंटेंस कंप्लीट किया या तो तुमने ये किया, they might feel offended, right? But if I try and put it in a way that I feel rejected, I feel misunderstood when, you know, I don't get chance to speak, okay. सामने वाले में हम एम्पैथी क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट सेशन में इमोशंस के बारे में सीखा था, है ना. व्हाट आर दी इमोशंस एंड वो कैसे हमें अफेक्ट करते हैं, उसके थॉट्स एंड एक्शंस में, राइट. सिमिलरली इफ वी ट्राई एंड कम्युनिकेट थ्रू इमोशंस, ओके, सामने वाले को पर्पसली हर्ट नहीं करना होगा, राइट. इफ वी एक्सप्रेस आवर इमोशंस, it can help us to, you know, build that space, okay, and the other person can hold that space for us while we speak. Would anyone would like to share any thoughts on this? Any doubts, any perspectives? I would just like to add something based on one of the question I received in last workshop, emotions wale workshop में. I think it was from Harish, जहाँ पे he asked कि he wanted to work on his anger, and he wanted to find a way जहाँ पे, you know, he can be more like finding more efficient way to communicate things so that the other person does not feel you know, bad or find it rude or something like that. So I think this is for all of us, because हमें भी गुस्सा आता है, and not only anger per se, like how Sakina mentioned, for any other emotions also. Maybe we can try this eye language, जहाँ पे, you know, it will completely shift the focus, जहाँ पे we are just letting the other person know कि अगर हम गुस्सा हो रहे हैं तो हम कहाँ से हमारा गुस्सा आ रहा है, right? So, and it will not sound like I'm blaming them. जो दूसरा इंसान है उसको हम blame कर रहे हैं, ऐसा sound नहीं करेगा. तो it would be more like कि मुझे नहीं अच्छा लगा कि मेरे बारे में ऐसा बोला गया, right? मुझे दुख हुआ, so it's on me, मतलब मुझे बुरा लगा. So maybe next person will think कि अच्छा उनको बुरा लग सकता है इस चीज में, ठीक है, मे बी नेक्स्ट टाइम से हम सोचेंगे कि नहीं, ऐसे नहीं बोलना है या जो भी है. लेकिन अगर जहाँ पे हम डायरेक्ट यू करके बात करते हैं तो वो थोड़ा गलत तरीके से भी रेसिप्रोकेट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि देन साउंड्स समवेयर इट माइट कम आउट एज ब्लेमिंग ऑल्सो. सो आई थिंक जो ये आई लैंग्वेज है, दिस कैन ऑल्सो बी यूज टू बी मोर असर्टिव, जो हमने लास्ट वर्कशॉप में भी बात की थी और इस वर्कशॉप में भी वी आर डिस्कसिंग. तो assertiveness, again I'll reiterate कि it's about communicating your needs clearly to someone. Now ये needs आपकी emotional needs हो सकती है, जो आपको support चाहिए किसी से, जो आप कुछ भी, right? तो उसको assertiveness बोलते हैं. And I think eye language
somewhere will help one to be more assertive and in a very efficient way. So I just wanted to add that. Yeah. Thank you. Thank you. Do we have any other questions, any thoughts, something participants would like to share? हाँ जी मैडम मेरी एक हारून सर से रिक्वेस्ट है कि जो सकीना मैडम और पल्लवी मैडम ने बोला उसको थोड़ा हिंदी में अच्छी तरह शॉर्ट एक्सप्लेन करें कृपा करके। Okay. Arun? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. आप कुछ कहना चाहती हैं मेरे से? No, I was just confused. How will this work? आप उनको मैसेज करोगे कि आप अभी हिंदी में ट्रांसलेट करोगे? ओके, अच्छा मेरे ख्याल में मंजीत जी पूछना चाहिए चाह रहे थे कि अभी मिस पल्लवी ने और आप में जो इंग्लिश में इस आई लैंग्वेज को बताने की कोशिश की है, तो वो किसी तरह उनको हिंदी में समझाया जाए। तो उसके लिए मेरे ख्याल में कुछ आप रेलिवेंट पर्सन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़रा आसान वर्ड में आई लैंग्वेज को बताने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में आप ये चाह रही हैं, ये चाह रही हैं या कुछ और चाह रही हैं? नहीं, मंजीत जी ने आपसे रिक्वेस्ट किया अगर आप हिंदी में उनको समझा सके। ओके ओके। अच्छा, तो मिस सकीना ने और मिस पल्लवी ने ये समझाने की कोशिश की है कि आई लैंग्वेज के थ्रू हम अपनी जो थॉट्स है, अपनी जो फीलिंग्स है, वो ओपनली दूसरे तक बताने की कोशिश करते हैं। कि अगर फर्ज करें कि वो किसी का वेट कर रही हैं और उनकी फ्रेंड जो है वो लेट आ गई हैं, तो वो उससे बताने की यानी कि गुस्से में अगर वो उनसे कह देती हैं कि मैं आपका इतनी देर से वेट कर रही हूँ और आप नहीं आए, तो उसके पीछे कोई रीज़न हो सकती है कि वो उन्होंने भी कहीं और जाना था, या वो वेदर काफ़ी मौसम काफ़ी ख़राब था, वो बहुत गर्मी में काफी देर से एक होता है आई मी यू। तो जो आई लैंग्वेज है वो आंख वाला आई नहीं है, वो आई जो के एच के बाद आता है आई, यानी कि मैं। तो जो वो आई लैंग्वेज को उन्होंने कुछ बताने की कोशिश की है। तो अगर इसमें आपका कुछ अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मंजीत जी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। जब हम आई लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, द आइडिया इज कि हम सामने वाले को भी प्रिपेयर करें कि हम वो हमारा कैसे साथ दे सकते हैं। द मिनट हम उनको प्रिपेयर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ एंड मैं वहां पे नर्वस हो जाती हूँ, अगर मैं वही बता दूँ कि ओके मुझे यहाँ पे किसी की हिंदी ट्रांसलेट की जरूरत पड़ेगी। इफ आई से आई बी थैंक यू टू हैव टाइम टू प्रेजेंट माय आइडियाज, और आई फील एक्सेप्टेड व्हेन माय ऑडियंस आर बीइंग पेशेंट एंड लिसन टू मी, है ना। तो क्या होता है कि ऑडियंस को पता है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, इंस्टेड ऑफ जजिंग। या तो वो ऐसे जब घूरते हैं ना, हमें कभी कभी उससे भी घबराहट होती है, वो थोड़ा सा मेलो हो जाता है, उनको पता है कि क्या करना है हमारे लिए, तो हम ठीक से हमारा टाइम लेके जैसे भी हमें चाहे हम वो एक्सप्रेस कर सके। Sakina, I'll try to address that like in Hindi. So मैं ये जो सकीना ने अभी बोला मैं उसको हिंदी में बताने की कोशिश करूंगी। तो वो बोल रही है कि जो आई लैंग्वेज है
वो एक तरीका है जो हम जिनके साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन के टाइम कोई ऑडियंस हो, चाहे वो हमारे फैमिली हो, चाहे कोई भी जिनके साथ भी हम कम्युनिकेट करते हैं, उनको प्रिपेयर करने का एक तरीके से, जहाँ पे हम उन्हें अपने बारे में कुछ चीजें ऐसी बता देते हैं जो मतलब वो फिर जो आगे जाके मतलब जो भी हमारे चैलेंजेस है उसमें हेल्प करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन में अगर किसी को नर्वस फील होता है, तो उस टाइम पे वो जिनके भी सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि मुझे अच्छा लगेगा अगर सब पार्टिसिपेट करें, तो मुझे उससे थोड़ा रिस्पेक्ट फील होगी या थोड़ा अप्रिसिएशन फील होगा। अब मैं अपना एग्जांपल ऐड करती हूँ। जैसे कहीं इंटरव्यू पे जा रहे हैं, तो हमें डर लगता है कि पता नहीं हम कैसे बोलेंगे, राइट? तो हम इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं कि आप अगर थोड़ा सा मुझे वक्त देंगे तो शायद मैं अच्छे से जवाब दे सकूं, और मुझे वो थोड़ा अप्रिसिएशन फील होगा और मुझे वो रिस्पेक्ट फील होगी कि मैं जो भी चैलेंजेस यहाँ हम डायरेक्टली नहीं बोल रहे, लेकिन एक तरीके से उनको बता रहे हैं कि जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं कम्युनिकेशन पे, आप अगर ये करेंगे तो वो कहीं ना कहीं मुझे इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा। तो ये है आई लैंग्वेज। और जो मैंने पहले बोला था गुस्से के बारे में, वो ये था कि जब हम किसी इमोशनल होते हैं, स्पेशली जब गुस्सा होते हैं, तो भी ये आई लैंग्वेज हेल्प कर सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने में और बेटर कम्युनिकेट करने में। क्योंकि गुस्से में कई बार होता है कि हम बोलते हैं तुमने ऐसा किया, बट जब हम आई लैंग्वेज यूज करते हैं तो नरेशन स्टोरी लाइन ऐसे चेंज हो जाती है कि मुझे बुरा लगा क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो हम किसी को यहाँ पे डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर रहे हैं। तो आई होप इट वाज क्लियर। थैंक यू। मुझे काफी सपोर्टिव फील होता है और हेल्पफुल फील होता है जब हरुण एंड पल्लवी हिंदी में ट्रांसलेट करता है। ठीक है। हाँ जी हरुण। हाँ जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हम सिर्फ आई लैंग्वेज को वर्बल कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा किसी और तरह की कम्युनिकेशन में आई लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं? ओके ओके। सो कम्युनिकेशन जैसा आप बता रहे हो कि काफी अलग अलग जैसे होता है, राइट? सो इन एनी फॉर्म आई वुड से इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेशन, जब भी हम खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना, अगर हम आई लैंग्वेज के यूज से करते हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिकली हमें समझ पाता है, राइट? So it could be any communication in any ways where we would like to express our thoughts, express our feelings, okay? हम क्या सोच रहे हैं, हमें कैसा लगता है, या तो हमें क्या महसूस हो रहा है, okay? वो हम आई लैंग्वेज वहाँ पे यूज कर सकते हैं. So it could be through any communication mode. I hope I was able to answer. एक और भी मेरा, इसको आगे लेके चलना है तो ठीक होगा क्या? आई लैंग्वेज का लोग मिसयूज करते हैं कि हम जो उन्हें बताना चाह रहे हैं कि जिस वजह से मैं आई लैंग्वेज को यूज करना चाह रहा हूँ, वो उसको उस तरह से लेते हैं या उसका फिर वो मिसयूज भी करते हैं? मिसयूज कैसे? मिसयूज का मतलब है कि वो उसे रॉन्ग वे में लेके जाएं। नहीं, तुम में तो बड़ी ईगो है, तुमने ऐसे कहा तो कहा क्यों, तुमने ऐसे सोचा तो सोचा क्यों, तुम भी तो मेरी तरह से अ, 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 कभी सोच के देखो, तुम बस सिर्फ तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रहती हो। इस तरह से मैं बात करना चाह रहा हूँ। Right, right.
अगर आपने नोटिस किया हो, आपके सारे जो सेंटेंस है वो तुम से स्टार्ट हो रहे थे, राइट? सो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सामने वाला फिर से ट्रिगर हो जाएगा कि मैंने तो ऐसा नहीं बोला, मैं तो मेरे बारे में बता रहा था, राइट? मैं तो मेरा बता रही हूँ। ओके, द आइडिया ऑफ आई लैंग्वेज इज जहाँ पे हम हमारी फीलिंग्स बता रहे हैं। ओके, आई फील डिसरिस्पेक्टेड व्हेन समवन इज स्पीकिंग लाउडली और समवन इज स्क्रीमिंग एट मी। ओके, मैं ये नहीं बोल कि तुम चिल्ला रहे हो, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कोई मेरे से चिल्ला के बात करता है मुझे काफी बुरा लगता है, वो डिसरिस्पेक्टिंग है मेरे लिए। ओके, तो मैं बता रही हूँ कि मुझे काफी अच्छा लगता है कि जब मुझे मेरा टाइम मिलता है आई स्पीक। ओके, मैं अपना टाइम लेके बता रही हूँ एंड सामने वाला पेशेंटली सुनता है। ओके, तो मैं ये नहीं बता रही कि तुम पेशेंटली सुनो अभी। ओके, you need to be patient. I'm just in general saying that I feel appreciated, I feel heard, I feel understood when someone is listening to me, or someone is being patient and listening to me. तो सामने वाले को पता है कि ओके इनको अच्छा लगता है ये, सो मैं वो करूंगा या तो मैं वो करूंगी, है ना? Second, एक doubt है ना? Yes, Gayatri, I'll come to you. Yes, Shubham? For being a stammerer, okay, अभी की जैसा आपने बताया कि अगर हमें बहुत ये अरश है सामने और वहां में स्पीच ये देना हो या फिर बहुत ज्यादा ये क्राउड है बहुत, तो हाउ टू मेक स्पीच इफेक्टिव while speaking? Right, right. Speech gets effective or ideas become effective when the other person is able to understand, है ना? Effective meaning के सामने वाले को समझ आ गई बात। Okay, so it's when we are using I language, what happens is we are bringing the other person who is here, making him or letting him stand in our shoes, right? So including when I'm having a business idea or business model, and I know how effective it's going to be and how good it's going to be. Okay, so I'm letting my investors come stand in my shoes and see it through my eyes, right? So this is how we make our presentation or ideas or thoughts effective, where the other person is able to understand. Okay, how we feel the minute we are attaching an emotion to it. Okay, the other person knows where we are rooting from, where we are coming from. Exactly. Yeah. Yeah, thank you. Yes, Harun. तो मैं अभी तक आपकी बात से ये समझ पाया हूँ कि आई लैंग्वेज को हम के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसके अलावा भी कोई आई लैंग्वेज का फायदा है या सिर्फ ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है आई लैंग्वेज? Okay, okay. आई लैंग्वेज अगेन वो हर प्रैक्टिस में अगर हम यूज करते हैं इट बिकम्स इफेक्टिव, है ना? सो अगर मेरा कम्युनिकेशन ही बेटर हो गया, सो देयर वोंट बी कॉन्फ्लिक्ट, राइट? सो आई लैंग्वेज इज समथिंग व्हिच हेल्प्स अस टू सेट बाउंड्रीज के मैंने पहले यहाँ पे बाउंड्री सेट कर दी। तो फॉर एग्जांपल मेरी हाइट छोटी है एंड कोई छोटी हाइट वालों पे ना मजाक बना रहा है और बी लाइक यू नो व्हाट, I feel insulted, okay, when I hear jokes on short people, okay, or I feel hurt when I see people laughing on short people joke, है ना? क्या हो रहा है कि मैं वहां पे वो एक बाउंड्री भी सेट कर रही हूँ कि उनको पता है अगर मैं आसपास हूँ वो लोग हंस सकते हैं, वो लोग मजाक बना सकते हैं, पर एटलीस्ट जब मैं वहां पे हूँ ना करे क्योंकि मुझे बुरा लगता है। ओके, सो आई लैंग्वेज के काफी यूज है। ओके, इट्स नॉट जस्ट अबाउट जैसे हम कम्युनिकेट करके चीजें करते हैं, ओके, जो भी काम करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, ओके, इंक्लूडिंग सेटिंग अ बाउंड्री। ओके, सामने वाले को पता होना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है कि गलत है।
या तो हमें क्या एक्सपेक्टेशंस है from the other person, what would we like them to do for us. Okay, so we don't go and tell them I would like you to do this for me, है ना, just because वहाँ पे I से start होता है. Like I feel appreciated when at the end of the day when I'm served with a hot tea. Okay, क्या होता है कि हम उनको आई लैंग्वेज का यहाँ पे गलत यूज हो सकता है जस्ट बिकॉज मैंने आई बोला, बट अगर मैं बोलूँ कि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, कि मैं घर पे जब आती हूँ मैं चाय कोई मुझे चाय देता है या तो ठंडा पानी पिला देता है, राइट. So we also can share our expectations from what we expect, not in general, not from a particular person, but in general. Okay, attaching a feeling to it. Yeah, you are saying right. Exactly. Thank you. Thank you. Gayatri, you wanted to share something earlier? Yes, actually, I wanted to address the question that Harun had asked earlier about where he was saying that sometimes it might happen. So this is my understanding what he was trying to ask. Sometimes it might happen that when we are using I language, the other person might feel that I have some kind of attitude and I am thinking about only myself. कि मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है. सो अदर पर्सन माइट थिंक कि अरे इसको क्या है इतना, मतलब शी इज सो सेल्फिश, ओनली थिंकिंग अबाउट हर सेल्फ. सो या आई वांटेड टू एड्रेस दैट. सकीना ने जो बोला है वो सब तो है ही, बट इवन इफ इट इज देयर, सी आई लैंग्वेज का मेन काम क्या होता है, so that you can communicate तुम्हें जो लग रहा है, whatever you're feeling. Now when you're doing that, that person might feel that okay, why is she so much about herself, या फिर ये इतनी खुद के बारे में क्यों इतना ये करिए, बट वो उसके साथ रहेगा. somewhere you will have that feeling कि हाँ मुझे जो लगता है मैंने बता दिया in a better way, instead of blaming that person firstly. and secondly, अगर next time उसको लेट होने वाला होगा, उसको वो याद रहेगा और वो मुझे कॉल करेगी कि मुझे लेट होने वाला है, क्योंकि मैंने उसको कम्युनिकेट किया कि मुझे ये पसंद नहीं है. सो दैट विल स्टे विथ हर कि अच्छा इसको ये पसंद है, तो माइट बी आई जस्ट गिव हर अ कॉल दैट मुझे लेट होगा, सो यू प्लीज डोंट वेट और यू कैन कैरी ऑन और वट एवर इट इज. सो दीज आर द टू थिंग्स दैट आई लैंग्वेज कैन डू. इट इज ओके, उसको लग सकता है कि अरे ये क्या इतना, मतलब खुद के बारे में क्या है इतना, ठीक है, बट उसके साथ वो रहेगा कि ठीक है इसको ये पसंद नहीं है तो मैं नेक्स्ट टाइम ये नहीं करूंगी. Thank you. Yes, Pallavi. Yeah, I just wanted to add to what Gayatri said. So, like she accurately mentioned it. यहाँ पे last time Harun, if you remember, we discussed about boundary setting also. जो आपने एक सवाल पूछा था कि बाउंड्री सेटिंग, इमोशनल रेगुलेशन कैसे होता है, तो ये एक तरीका है जहाँ पे हम इस तरीके से हम बाउंड्री सेट करते हैं. एंड अगेन लास्ट टाइम तो ऑलरेडी डिस्कस हो ही चुका है कि बाउंड्री सेटिंग इम्पॉर्टेंट है इमोशंस के लिए भी, उनको रेगुलेट करके रखने के लिए भी. सो हैविंग सेड दैट, डेफिनेटली जब भी हम ये आई लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और किसी को हम अपनी फीलिंग्स कन्वे कर रहे हैं, इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू बी लिटिल आवर टोन, राइट. तो फीलिंग्स तो हम अटैच कर ही रहे हैं, लेकिन इट शुड बी ऑलवेज विद द एम ऑफ लेटिंग देम नो लाइक आवर फीलिंग्स की हमें क्या चीजें बॉदर कर रही है, इंस्टेड ऑफ अगेन अंदर का इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ब्लेम डालना है. सो वो टोन भी थोड़ा ध्यान में रखना इज इम्पॉर्टेंट, राइट. एंड विद दैट one thing, just I think most of us here present here would be working. तो बस मैं ये ऐड करना चाहती थी कि सिंस ऑफिस या वर्क स्पेस में आई अंडरस्टैंड कि कई बारी कलीग्स के साथ हो गया, बॉस के साथ हो गया, कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, राइट. तो I think all of us here can at least start practicing that in our workspace. जहाँ पे हम अपने कलीग्स के साथ जब काम कर रहे हैं या जब हमें कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो एटलीस्ट हम कई बार होता है लाइक इट कम्स फ्रॉम देम कि जल्दी जल्दी करो, इवन दो दे विल नो लाइक क्या चैलेंजेस है, बट जस्ट टू रिमाइंड देम ऑल्सो
कि आई अंडरस्टैंड कि देयर माइट बी अ पॉइंट जहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगेन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की सेंटेंसेस, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे तो आई वुड फील अप्रिशिएटेड या सपोर्टेड। तो वो चीजें थोड़ा प्रैक्टिस में हम अपनी वर्क स्पेस में ला सकते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। या थैंक यू। Okay. So while we are practicing our language, or we are trying to communicate our ideas, our thoughts, our emotion in a way where the other person is able to understand, right? कि क्या हो रहा है, the effective communication. Okay. The idea is to have that loop के मैंने पहले एक सेफ स्पेस बनाया खुद के लिए, ठीक है, जहाँ पे ठीक है मुझे पता है कि ये चीज कंफर्टेबल है मेरे लिए, कि मैं इतने टाइम में ही बात कर सकती हूँ, या तो मुझे थोड़ा स्लो स्लो बात कर सकती हूँ, या तो मैं सिर्फ इंग्लिश में बहुत फ्लुएंटली बात कर सकती हूँ, जो भी हो, ठीक है। वो जो हमने बाउंड्री सेट की है, राइट, वो एक बार रिफ्लेक्ट कर लिया कि ये ठीक है, उसके बाद हम इमोशंस आइडेंटिफाई करते हैं, जो हमने लास्ट वर्कशॉप में सीखा कि हम वो इमोशंस कैसे देखें कि क्या मेरे लिए सेफ है और क्या अनसेफ है, जो मुझे अच्छा फील करवाता है, रिस्पेक्टेड फील कर रहा है, कुछ जो मुझे इंसल्टिंग लगता है, कुछ मुझे बुरा फील करवाता है, अंडर कॉन्फिडेंट फील करवाता है, राइट। व्हाट हैपेंस इज वंस वी आइडेंटिफाई, ओके, कि वो क्या है, ठीक है, वो इमोशन क्या है और क्या होता है वो सिचुएशन में, ठीक है, जहां से मुझे ये फील होता है। मुझे लेट्स टेक एग्जांपल कि जब क्राउड का जो एक्सप्रेशन होता है, या तो लार्ज क्राउड होता है, वहां पे आई कांटेक्ट होता है, वो चीज मुझे थोड़ा सा नर्वस फील कराती है, एंशियस फील करती है। तो सामने वाले का कुछ तो है, सामने में कुछ देख रहा हूँ जो मुझे ट्रिगर कर रहा है, नर्वस फीलिंग, एंशियस फीलिंग, है ना। एंड वो क्यों होता है, राइट, क्योंकि सब अगर 20 पार्टिसिपेंट्स है तो 40 आंखें मुझे ही देख रही है, तो थोड़ा तो हम घबरा ही जाएंगे, राइट। जो पूरा है, ओके, हमने ये जो भी क्वेश्चंस के जवाब मिले हैं, हम सिर्फ उस पे लाइंस आई लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताते हैं कि I'll feel strong, I'll feel confident when my participants are participating or sharing their ideas। तो क्या आएगा कि ऑटोमेटिकली पूरे 1 घंटे के लिए स्पॉटलाइट मेरे पे नहीं है। When other participants are talking, तो लोग उनकी तरफ भी देखेंगे, तो वहां पे I can practice my deep breathing, I can practice my pause, I can have a sip of water, and जब तक क्राउड फिर से मेरी तरफ देखेगा, राइट। हम स्पीच टेक्निक्स तो यूज कर रहे हैं, बट देयर आर दीज अदर टेक्निक्स एज वेल जो हमारे एनवायरनमेंट को हमें सेफ फील करवा सकती है, एंड फिर जो भी आइडियाज है, जैसे भी थॉट्स है, हम इजीली शेयर कर सके। सो टुवर्ड्स ये जो स्टेप्स है, मैं टेलीग्राम पे वो एक पैम्पलेट में लिख के दूंगी। आई वुड रियली सजेस्ट पीपल कि एक बार ट्राई करें, देखे वो कैसा वर्क होता है। 1-2 बार अगर नहीं भी काम हो किया तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करें, ओके, एंड जो भी एक्सपीरियंस हो वो हमारे साथ शेयर करें। सो इट विल हेल्प अस टू सी व्हाट थिंग्स वर्क आउट, एंड जहाँ पे हमें भी हमारी तरफ से और थोड़ा सा काम करना हो। यस अरुण। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम आई लैंग्वेज में सोचना, आई लैंग्वेज में समझना, या आई लैंग्वेज में बात करना शुरू करें, या उसमें किया करें। हमें उसके लिए क्या क्या करना होगा? प्रैक्टिस। Right. नहीं, The practice is fun. Yes, Arun. Yeah. न- Go on, यानी I'm so sorry to cut you off. वो मुझे अपने थॉट में या अपने अंदर क्या चेंजेस लानी पड़ेंगी कि मैं आई लैंग्वेज में बात कर सकूं, मैं आई लैंग्वेज में अपने थॉट्स को प्रोसेस कर सकूं। Right. So
आई लैंग्वेज में सब जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंटेंट वो सेंटेंस का है फीलिंग्स, है ना, कि मुझे क्या फील होता है वो सिचुएशन में. ओके, सो इन एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, कोई भी सिचुएशन में कुछ भी हो, इफ वी कीप चेकिंग इन विद आवरसेल्फ कि ओके रिक्शा वाले ने ऐसे बात की मेरे से, हाउ डिड दैट मेक मी फील. ओके, ठीक था कि हाँ ठीक है उसका भी कुछ तो चल रहा होगा, ठीक है. या तो मुझे लगता है कि नहीं वो काफी रूड था, उसको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए. इफ आई एम इन टच विथ माई इमोशंस, मुझे पता है कि मुझे क्या फील हुआ, इट विल बी इजियर फॉर मी टू कम्युनिकेट, क्योंकि मैं मेरे इमोशंस के साथ इन टच हूँ. ओके, अगर मुझे प्रेजेंटेशन देना है, ओके, एंड मैं खुद को पूछूं कि ओके हाउ एम आई डूइंग, हाउ इज दैट दिस थॉट ऑफ प्रेजेंटिंग मेकिंग मी फील. अगर मुझे बोलता है कि ओके आई एम फीलिंग नर्वस, आई एम लिटिल एंशियस, ओके, सो वहां पे मुझे बताने में कि ठीक है आई एम फीलिंग एंशियस, अगर नहीं भी बताना उसका ऑपोजिट क्या है, क्या हो सकता है वो सिचुएशन में कि मुझे एंशियस फील ना हो. अगर कोई मुझे बोलेगा कि जल्दी 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 बोलो और फिर निकलना है, वो चीज मुझे एंशियस फील कराएगी, राइट. सो आई कैन बिफोर आई इवन स्टार्ट आई कैन जस्ट शेयर दैट आई वुड request you to give me the time, okay, or I request you to allow me the time to present my ideas and present my thoughts, है ना. So a regular check-in with ourselves कि हमें क्या फील होता है in certain situations will help us to communicate with others. अगर मुझे ही नहीं पता मुझे क्या फील हो रहा है, सामने वाले को फिर थोड़ा सा वहां पे ठीक से नहीं बता पाए. बहुत बार होता है कि किसी ने कुछ बोला और हमें वो हर्ट हुआ है, सैड फील हुआ है, और हम क्या करते हैं, हम गुस्से में उनको चिल्ला देते हैं, है ना. हम ये तो बता ही नहीं पाए कि उन्होंने जो बोला वो गलत था, वो हमें थोड़ा सा हर्ट हुआ, राइट. सो वी नीड टू बी इन टच विथ आवर इमोशंस. द मोर वी चेक इन विथ आवरसेल्फ, we are able to even then regulate our emotions. Okay, yes Hitesh. In real world situations, people who are involved in some conversations और जो हिंदी में बोलता कि सब लोग समझ सके, other people don't give you enough time. They don't have enough time for you to think, speak slowly, have your they don't have enough patience with you that you will practice your speech better or something. So they expect you to be speaking normally and go on to next thing. So that gets challenging for some of us. So I understand that there are certain techniques, but how to handle that situation? The other person is not patient enough for you to think, speak slowly before you start. Okay, you can tell him I'll speak slowly. You have to be patient with me. Many people won't be acceptable to that. Right. So I was thinking how to handle that situation. Okay. Which is a very fair question, because a lot of people do have that challenge in having the patience, right. Very similarly, Hitesh, if I don't know if you have attended our previous workshops, okay, in one of those workshops we did tried working on this. Okay, there is only a certain amount of things or a certain level where we can control, right. If they don't have patience, and even after requesting they are not having the patience, right, it's our boundary how we would like to set and how we would like to go about it. Okay, जैसे मैंने पिछले वर्कशॉप में एक एग्जांपल दिया था कि मैं एक शॉप में जा रही हूँ, ओके, एंड मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है उनको बताने में कि मुझे क्या चाहिए, एंड द शॉपकीपर लाइक जल्दी जल्दी जल्दी, पीछे लाइन है, ओके. It won't make me feel okay. It make me feel even more nervous and worse about myself. Okay, I can just decide not to go in that shop again and find some other shop where I feel okay, right? Or I can just request them. Eye language also includes, how it makes us feel when someone is rushing us. You can just share that how we feel. Okay, I feel hurt. I feel disrespected. I feel unheard. Okay, so just saying that
can help. If the person is human enough, if they have empathy, they will try and understand how we feel when we are in a certain situation. It just helps them to step in our shoes and see how that makes us feel. Okay, and even if that doesn't work, I can surely tell you we need to refer the person to counseling or psychiatrist to learn some patience and empathy. Thank you. You're welcome. Yes, Arun. जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि हमारे जिंदगी में, लाइफ में कुछ लोग इस तरह से बात करते हैं कि वो बात करते हुए बीच में कुछ करेक्टर्स को मैं हारून, तो वो अगर आर से उन्हें डर लगता है तो हाउन कर देंगे और आर को बीच में से मिस कर देंगे। या फिर वो अगर मेरा फुल नेम है हारून नूर रशीद, तो अगर उन्हें एस से डर लगता है या एच से डर लगता है तो वो बीच में उस करेक्टर को मिस कर देंगे, तो वो हमें फिर वो वर्ड समझने में बड़ी मुश्किल होती है या हमें टाइम लगता है, अच्छा इसने ये कहा होगा। तो अगर ऐसी हमारी लाइफ में कोई पर्सन हमें ऐसा मिले और तो हम उसकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि तुम अपनी बात में या अपनी कम्युनिकेशन में इस अल्फाबेट को मिस कर रहे हो, तो हम उसकी किस तरह से हेल्प करें कि वो ठीक तरह से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सके। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले एक डिमांड की थी कि मैं ऐसी वीडियो आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि अगर मैं वो चीज बताने में आपको सही नहीं बता रहा या आप मेरी बात नहीं समझ सके, तो लाउंज में एक ऐसा पर्सन आया तो वो इस तरह से बात कर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उससे किस तरह से समझाऊं कि वो इस अपनी इस बात करने के तरीके को ठीक कर सके। Right, right. What would be the reason कि वो alphabets miss कर रहे हैं? जो मुझे समझ आ रही है कि वो उस अल्फाबेट से डरता है, तो काफी अरसा उस डर डर के उसने उस अल्फाबेट को बोलना ही छोड़ दिया और वो बड़ी तेजी से बोल के जाता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा, तो ये कहना चाह रहा था। तो इस तरह के पर्सन की हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि वो उस अल्फाबेट से डरना छोड़ दे और वो यानी कि वो ठीक तरह से बात किया करे। Right, right. अगर कोई भी डर रहा है, राइट, तो द फर्स्ट थिंग इज उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराए, उनको सेफ फील कराए कि एग्जाम्पल नीचे एक डॉग है एंड बच्चा खेल रहा था एंड खेलते खेलते डॉग ने उस पर अटैक करने की कोशिश की एंड बच्चा घर पे आता है, राइट, वो डरा हुआ होगा, घबराया हुआ होगा और वो कुछ बोल नहीं पाएगा कि क्या हुआ उसके साथ। ठीक है, the minute we see a child, the first thing we do is डरा हुआ है, हम उसको बैठा देंगे और थोड़ा सा पानी देंगे, हमारे ही बच्चे तो हम गले भी लगा देंगे, उसको थोड़ा सा शांत करेंगे, राइट। सो ट्राइंग टू बिल्ड अ सेफ स्पेस फॉर देम। ठीक है, कि उनको थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, क्योंकि हम अगर पब्लिक में बात कर रहे हैं सो हार्ट बीट फास्ट हो सकती है, डर वाले जो सेंसेशंस है ना, कितने सारे थॉट्स होंगे रेसिंग कि मुझे जल्दी 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 कंप्लीट करना है, राइट, बिफोर वी इवन यू नो बोलना स्टार्ट करें। ओके, एंड वी नो इफ दिस इज द पर्सन जो यूजुअली डर जाता है। ठीक है, वी कैन फर्स्ट आस्क देम हाउ कैन वी हेल्प यू टू फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन द स्पेस। ओके, क्या है जहाँ पे हम आपको कंफर्टेबल फील कर रहा है। ओके, तो आप आराम से बता सके, आपको डर ना लगे।
है ना। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि हाँ हाँ ये टेक्निक्स ट्राई करते हैं, ठीक है, वो शायद से काम ना करे, क्योंकि वो पर्सन की डिमांड कुछ अलग होगी, एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग होगी सेफ स्पेस की, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज गुड कि उनको ही पूछे कि फर्स्ट कि हाउ आर यू फीलिंग, okay, then how can I help you, how can I help you to make this space safe and comfortable for you to speak, okay। पहले उस पे काम करते हैं, वो फाउंडेशन सेट हो गया, ऑटोमेटिकली जो वो इंडिविजुअल है उसको थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगेगा सेफ फील करने के लिए, बट देन उसको भी वो आदत होगी कि हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई मुझे जज नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लेके बात कर सकता हूँ। Okay, so it's always good to ask the other person how we can help them to feel safe. Yes, Gayatri. Yes, as Sakina correctly mentioned, asking them first, in first place, do they actually require some help and how we could help them. तो वही मेरे दिमाग में है कि कभी कभी समझाने से ज्यादा सामने वाले पर्सन को समझना इज समथिंग दैट वी मिस आउट ऑन। हमें ऐसा लगता है कि ओके, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि वो कोई एक लेटर या कोई मिस आउट कर जाता है, तो हमें भी ऐसा लगता है विच कम्स फ्रॉम अ वेरी जेन्युइन साइड कि आई नीड टू हेल्प दिस पर्सन वेयर ही कुड इम्प्रूव। बट समटाइम्स वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो डेफिनेटली वी नीड टू कम्युनिकेट इन सम वे कि हाउ ही कुड गेट बेटर, बट हमें ये समझना भी पड़ेगा कि अभी वो उस स्पेस में है क्या जहाँ पे हम उसको बता पाए कि वो कैसे हम उसको हेल्प कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं। वो पहले वो सेफ स्पेस बिल्ड करना, वो रैपो बिल्ड करना बहुत जरूरी है। ओनली देन यू कैन गो एंड आस्क हिम कि हाउ कैन आई हेल्प यू, और डू यू इवन रिक्वायर अ हेल्प विद इट। वी डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग विद दैट पर्सन, या फिर क्यों नहीं कर रहा है वो। ये हमारा ये कि इस हमने एंटिसिपेट कर लिया कि इस रीजन की वजह से वो नहीं बोल रहा है, पर हमें अभी तक पता नहीं क्योंकि हम उसको जानते नहीं है। सो समटाइम्स सिर्फ इंसान को समझना is what we can do for some time, and then when the person is comfortable we can go ahead and see how it can work. Thank you. थैंक यू। अच्छा, मेरा एक और भी छोटा सा क्वेश्चन है कि हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि हम अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बच्चों पर भी कुछ प्रेशर होता है कि उन्होंने घर में भी अगर बहुत से बच्चे हैं तो उन्होंने आपस में compete करना होता है। जहाँ वो पढ़ने जाते हैं वहाँ भी उन्होंने पढ़ने वाले बच्चों के साथ compete करना होता है, और कभी कभी माँ बाप का भी प्रेशर होता है कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम शरारतें बहुत ज्यादा करते हो या कुछ भी। तो बच्चों पर एक तरह से प्रेशर होता है कि हमसे हमारे अम्मी अब्बू कभी भी खुश नहीं होते, वो कभी भी हमारी तारीफ नहीं करते। तो किस तरह बच्चों की भी मेंटल हेल्थ पे उनके पेरेंट्स को काम करना चाहिए? थैंक यू। पहले तो अम्मी अब्बू को अप्रिशिएट करना चाहिए बच्चों को। जब मैंने पेरेंट्स अप्रिशिएट कुछ भी हो, भले 10 में से 10 मिले कि 10 में से 4 मिले, ठीक है, कुछ भी हो, अगर अप्रिशिएट कर लेते हैं बच्चों को, बच्चे को लगता है कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, आई हैव अ सपोर्ट सिस्टम आई कैन लुक अप टू। ठीक है, इस बार थोड़े से कम मार्क्स आए हैं, पर देयर माइट बी अ रीजन। अगर बच्चे को हम सपोर्ट देते हैं और वो समझ के लेते हैं कि हाँ ठीक है, दिस इज नॉट द ग्रेटेस्ट थिंग, आगे जाके हम ठीक कर सकते हैं, जहाँ पे तुम्हें डिफिकल्टी आई है ना, हम साथ में काम करते हैं, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से ही बच्चे को हर स्टेप में हम अगर साथ देते हैं, ऐसा नहीं कि लाओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे जाना है, बच्चा हमें बताएगा कि उसको कैसे जाना है और हमसे वो उसके साथ है, ओके। वहीं पे बच्चे की मेंटल हेल्थ काफी बैलेंस होती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वही चीज जब पेरेंट्स बच्चे में बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, रिस्पेक्ट बताते हैं, बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ वर्थ है, वो
इंक्रीज होता है एंड बच्चा काफी कॉन्फिडेंट बनता है टू फेस एनी चैलेंजेस इन द वर्ल्ड। ओके, तो अगर इस बार 10 में से 4 मिले हैं तो नेक्स्ट टाइम 10 में से 10 आएंगे। ओके, बट द मिनट द चाइल्ड फील्स डिसरिगार्ड कि नहीं तुम्हें 4 मार्क्स मिले हैं ना तो नहीं, ओके, या तो हम पनिश कर लेते हो, बच्चा वहीं पे ऐसे हो जाता है कि अरे ये तो इतनी बड़ी गलती हो गई मेरे से, बच्चा पूरा ब्लेम उस पे ले लेता है। ओके, तो वहां पे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ और पूरा नीचे हो जाता है। कुछ भी हो, अगर बच्चे को हम अनकंडीशनली लव करते हैं कि कोई कंडीशंस नहीं, तुम जैसे हो तुम प्यारे हो, ओके, द चाइल्ड फील्स दैट सेफ्टी एंड द चाइल्ड इज एबल टू ग्रो। सो पेरेंट्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे पेरेंट्स कैसे बात कर रहे हैं बच्चे से। Yes, Gayatri? Yeah, if I can just add on. Sakina ने जो बोला, that is absolutely correct. The child should feel that appreciation from parents, and the most important mistake that a parent does is comparing between their children or comparing their children with other children. So this is something that we need to stop first. And we need to understand that each child is unique. Each child has their own strengths. They have their own qualities. तो पहले तो ये हमें जानना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन, व्हेन वी से अनकंडीशनल लव डजंट मीन दैट हम सब चीज के लिए उनको हाँ बोल दें। दैट इज नॉट what we are trying to say. There is a difference between being strict and being firm. So as a parent, we require to be firm and we don't have to be strict. तो when I say we require to be firm is that कि बच्चे को समझना चाहिए कि जब नहीं बोला है तो वो नहीं है, तो फिर कुछ भी हो जाए, my parent is not वो डगमगाने नहीं वाले, कुछ भी हो जाए। And this is what somewhere today as parents most of us lack, कि हम पेरेंट ना बोल देते हैं बट उनकी थोड़ी शक्ल गिर गई, वो रोने लग गए, तो हम मान जाते हैं वो चीज करने के लिए। Or else if dad is saying no, mom will be ready to do it, and if mom is saying no, dad is there. और अगर ये दोनों नो बोल रहे हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स तो है ही देने के लिए। So this is where we need to work as a team when it comes to parenting. And when it comes to parenting, I think I can go on and on. But yeah, so just a gist where I can address this question is, when we are saying that when we want our children to be in a good mental space और उनका mental well-being का ख्याल रखना है, so हमें as a parent we have to take some steps for ourselves so that हम वो follow करें और उसी एक चीज पे stick रहे और वो maintain करें। Yeah. Thank you for sharing. Okay. Do we have any other questions, any other doubts? Okay, so we'll bring the session to the end. Okay, जो भी questions है, जो भी doubts है, we always welcome them. आप टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पे हमें टैग करके वही ग्रुप में पूछ सकते हैं वो सवाल, कोई भी डाउट हो या तो कुछ टेक्निक आपने ट्राई किया एंड शायद से वो काम ना हो, इट्स कम्प्लीटली ओके, राइट। कुछ टेक्निक्स काम कर सकती है कहीं पे, कुछ और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, या तो कुछ टेक्निक्स नहीं काम करती, इट्स ओके। सबको एक ही साइज फिट नहीं आता, राइट। तो इट्स ओके, लेट अस नो, हम जैसे भी we'll try our best to try and tailor make it for the person, जहाँ पे उनको वो use हो, उनके लिए वो helpful हो। Okay, great. Thank you so much for attending today's session. Thank you. Yeah, thank you so much, Sakina. Thank you. Yeah, thank you everyone. Good night. Bye bye. Good night, everyone. Have a nice weekend. Bye. You too. Bye.